રંગેલું રાજકોટ, કેટલીય સંસ્થાઓનું ઉદ્ભવ સ્થાન એટલે રાજકોટ. હાલ થોડા દિવસ પહેલા પ્રજાપતિ સમાજ માટે રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે કાર્ય કરવા સજ્જ થયેલ સંસ્થા કુંભાર સમાજની પ્રથમ મીટિંગ યોજાઈ ગઈ. હું નિકુંજ સરવૈયા વીએસપી એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો પ્રેસિડેન્ટ છું અને આજરોજ આપણા ઇન્ડિયા લેવલના કમિટીનો વિચાર કરનારા યશવંતભાઈ પ્રજાપતિ એમના નિવાસ સ્થાને એક નાની એવી મિટિંગનું આયોજન કરેલ હતું અને આ મિટિંગ દરમિયાન એક ફોર્મની એક વિધિ કે જે ફોર્મ દ્વારા આપણા ઓલ ઇન્ડિયા લેવલના પ્રજાપતિઓને બધાને એક ફોર્મની ફોર્મેટ ભરીને બધા લોકોને એકઠા કરીને અને આપણા સમાજની અંદર થઈ રહી પ્રવૃત્તિની બધાને જાણ કરવાની જે તે ફોર્મ ભરીને અને આજરોજ કુંભાર વેલફેર ટ્રસ્ટ દ્વારા ફોર્મ બાબતની ચર્ચા થઈ હતી. પ્રજાપતિ યુવા સેનાના પ્રમુખ પરેશભાઈના માધ્યમથી આપણે ન્યૂઝ દ્વારા બધાને જાણ કરીએ છીએ કે રાજકોટમાં એક ખુશીનો માહોલ પ્રજાપતિ માટે એ છે કે નેશનલ લેવલની સંસ્થા, ઇન્ડિયા લેવલ નેશનલની સંસ્થા કે રાજકોટમાંથી એનો પાયાના મંડાણ થઈ રહ્યા છે. નરેશ શામજીભાઈ ધરોડિયા, અખિલ ભારતીય પ્રજાપતિ કુંભાર મહાસંઘ, રાજકોટ જિલ્લાનો પ્રમુખ છું. અત્યારે આખા ભારત દેશમાં દરેક રાજ્યમાં જે પ્રજાપતિના સંગઠનો કામ કરી રહ્યા છે અને પ્રજાપતિ સમાજના ઉત્કર્ષ માટે જે પ્રક્રિયાઓ ચાલી રહી છે એમાં ગુજરાતમાંથી દરેક જિલ્લાઓમાંથી અલગ અલગ લોકો ઘણી બધી મહેનત કરે છે અને એના પરિણામો આપણને દેખાઈ આવે છે. કચ્છમાંથી વાઘજીભાઈ છે, શૈલેષભાઈ માલવી છે, અમદાવાદથી નરેશભાઈ પ્રજાપતિ છે. એવી જ રીતે રાજકોટમાંથી યશવંતજી પોતે રાજસ્થાનના છે, બોમ્બેમાં તેઓ રહે છે, પરંતુ એમણે પણ એક અભિયાન ચાલુ કર્યું છે અને એક પ્રજાપતિ સમાજ માટે કંઈક ને કંઈક પ્રગતિ થાય. પ્રજાપતિ સમાજ દરેક ક્ષેત્રમાં, રાજકીય ક્ષેત્રે, આર્થિક ક્ષેત્રે, મેડિકલ ક્ષેત્રે અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે સમાજ એના પૂરેપૂરા લોકોને લાભ અપાવી શકે એ માટે મહેનત થઈ રહી છે. એના માટે આજે રાજકોટમાં એક મિટિંગ થઈ હતી. એ મિટિંગમાં પ્રજાપતિ સમાજના લોકોનું વસ્તી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી અને લોકોની ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે લગભગ 12 લાખ લોકોની, 12 કરોડ લોકોની જ્યારે વસ્તીની પ્રક્રિયા પૂરી થનાર છે. તો આ રીતે પ્રજાપતિ સમાજ ઘણું બધું કામ કરી રહ્યું છે અને એના આવતા સમયમાં આપણને એના બધા લાભો મળશે. એ માટે આપણે બધાએ કામે લાગી જવાનું છે. અસ્તુ, वंदे मातरम। नमस्कार। आज दिनांक 28/6/2020 को राजकोट में एक संयुक्त मीटिंग कुंभार समाजम की ली गई और जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिए गए, जिसमें फार्म का आखिरी डिसीजन लिया गया और अब वो फार्म प्रिंट में जाएगा तथा इसके बाद में अगले राजकोट शहर के अंदर जो पोस्टल पिन के हिसाब से हमें 8 व्यक्ति चाहिए जो कि इन फार्मों को भरवा ले और उसके बाद कम से कम 2 महीने के अंदर हम राजकोट को पूरा कवर करके उसके बाद राष्ट्रीय लेवल पर हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। राष्ट्रीय लेवल पर कार्यक्रम बढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हमारे पास जो 10-12 करोड़ कुम्हार हैं पूरे भारत के अंदर, उनको एक स्तर पर लेके आना है, एक स्तर पर मंच पर लाना है जहाँ से हम हर कुम्हार की उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसके कार्यक्रम क्या है, वो क्या काम करता है, क्या नौकरी करता है, बिजनेस करता है या फिर वो मजदूरी करता है, किसी भी प्रकार के काम के बारे में उसकी जानकारी लेके और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनका समाज के प्रति रुझान है और समाज सेवा करना चाहते हैं ताकि हम समाज को अगली नई दिशा में ले जा सके। अब इसके ऊपर जो विचारधारा चलती है वो इस प्रकार है कि पूरे भारत में हमें ढूंढने पर भी एक भिखारी कुम्हार नहीं मिलता, यानी कि हमारी जो जाति है वो मेहनतकश जाति है। विश्व के किसी भी स्तर पर किसी भी शहर में चले जाइए, आपको हमारी जाति के कुम्हार के लोग मिलते हैं, मगर वो भिखारी नहीं है। मेहनतकश जाति होने के बाद भी हमारे कई टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं और वो कारण भी है कि हमारी संस्कृतियाँ अलग अलग जगह अलग अलग है, भाषाएँ अलग हैं, रीति रिवाज अलग है, किंतु उसके बावजूद भी हमारा जो खून है वो मेहनतकश खून है और हम लोग सृजनात्मक लोग हैं। सृजन करना हमारे खून में और हमारी आदतों में शुमार है। इसके लिए ये पूरा समाज अभी तक जो पिछड़ा हुआ है उसमें अंदर जो एक अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं हैं
उन सबको ध्यान में रखते जो योजना बनाई है राष्ट्रीय स्तर की, वो योजना पर आज विचार विमर्श हुआ, जिसमें हमारे समाज के बंधु आए और लगभग 1 घंटे तक हमारे विचार विमर्श हुए और उसमें कुछ डिसीजन हुए, अच्छे डिसीजन हुए हैं, ताकि हम फार्म भरवा सकें, काम बांट सकें और उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर हमको न्यूज़ के माध्यम से एक दूसरों के साथ जुड़ने का मौका मिले, उस प्रकार के लिए हमने बात किया। और परेश मूलिया जी ने उसमें अच्छी विचारधारा रखी, दिनेश जी ने अच्छी विचारधारा रखी, नरेश जी है, डॉक्टर अल्पेश जी है और सरवैया जी है, गीता बहन है, इन्होंने हमारे अच्छे विचार विमर्श किए और एक एक बिंदुओं के ऊपर बातचीत किया। निश्चित रूप से इसमें थोड़ा समय लगेगा, मगर हम आने वाले 1 महीने में इस काम को निपटा देंगे। सर्वे राजकोट के अंदर और फार्म भरवाने का कार्यक्रम लगभग 2 महीने में हो जाएगा। उसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे और मैं निवेदन करता हूं राष्ट्रीय स्तर के कुमारों से कि आप अब अलग अलग टुकड़ों में बंटकर मत रहिए। आपकी संख्या 10 से 12 करोड़ है। निश्चित रूप से आप सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और वैचारिक क्रांति कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम सृजन का काम है, हमारा काम विध्वंस का नहीं है। और सदियों तक और सदियों से हम सृजन के काम करते आए हैं। हम इस दुनिया को बेहतरीन सृजन से सृजन और बेहतरीन से बेहतरीन दुनिया बना सकते हैं। और हमारा काम, हमारी क्षमता और हमारा आकलन बेहतरीन स्तर पर हो सकता है। इसलिए मेरा सभी कुमारों से, पूरे भारत और विश्व के कुमारों से ये निवेदन है कि वो लगभग 3 साल के अंदर, आने वाले 3 साल के अंदर 12 करोड़ कुमारों का एक मंच पर डाटा लेके आएँ और उसके बाद हम विश्व स्तर पर काम करेंगे। उसमें से जो भी क्रीमी पर्सन होंगे, जो भी अच्छे लोग हैं जिनको रास्ता नहीं मिल रहा था समाज सेवा का, राजनीतिक सेवा का, धार्मिक सेवा का या सृजन सेवा का, हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। और आपकी इस प्रकार की एकताओं के लिए हमें, उस एकताओं के साथ साथ हमें भविष्य के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, सृजन के क्षेत्र में, शिक्षा के, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर्स में और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें काम करना है। मगर उनके बारे में हम आज विचार विमर्श इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा शुरुआती दौर है। हम इसके ऊपर विचार लगभग 2 सालों बाद में आगे बढ़ाएंगे, जब तक कि हमारा पूरे भारत के कुमार हो जाएंगे। मैं अपना विचार रख सकता हूँ आपके सामने, किंतु निर्णय क्षमता मैं नहीं ले सकता। निर्णय क्षमता पूरा समाज लेगा। मैं अकेले समाज का निर्णय करने वाला नहीं हूँ। निर्णय, मेरा काम है विचार रखना और निर्णय करने का कार्य पूरे समाज का होगा। और वो समाज का निर्णय तब होगा जब आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर आएंगे। और जब एक मंच पर आएंगे तो वो रखने वाली योजनाओं के अंदर हम कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं। हमारे समाज के लोगों को आज मेडिकल की सुविधाएं अच्छी नहीं मिलती, शिक्षा की सुविधाएं अच्छी नहीं मिलती है। फाइनेंशियली लेवल पर, आर्थिक रूप से हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और ये इसमें बहुत सारी विशाल हमारी योजनाएं हैं, किंतु वो सारी चीज़ें हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मंच उपलब्ध नहीं है। हम अलग अलग विचारधाराओं में कहीं बिखर गए हैं और उसके कारण हमारे को, हम अभी तक जो स्तर पर जाना चाहिए उस स्तर पर नहीं गए। किंतु ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से 2029 तक, 2028 तक अपने समाज को एक नई दिशा की तरफ लेके चले जाएंगे। मैं बीच के 2-4-5 सालों के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कार्य योजनाओं को लागू करने में और लोगों को समझने में, उनकी विचारधाराओं को देखने में और उनको लागू करने में समय लगता है। ऐसे झूठे सपने दिखा करके नहीं, हम तो कल कर देंगे, परसों कर देंगे, इसमें इसका कोई सिर पैर का वजूद नहीं होता। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर आने के लिए हमारी इस योजना के साथ में आइए और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। आपकी विचारधारा का हम स्वागत करते हैं। आप हमारी विचारधारा का स्वागत करिए। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं मगर कुमार फिर भी हम एक ही हैं। नमस्कार। મારું નામ પરેશભાઈ શામજીભાઈ પ્રજાપતિ, રાજકોટ પ્રજાપતિ યુવા સંગઠનમાં સૌરાષ્ટ્રનો પ્રભારી છું અને અહીંયા પ્રજાપતિ સમાજમાં મીટિંગ થઈ કે નેશનલ લેવલે આ સંગઠન લઈ જાઓ, સંસ્થા લઈ જવાની છે, તો એના માટે સ્વામીજીએ ના નેતૃત્વની અંદર નરેશભાઈ, દિનેશભાઈ અને સાથી મિત્રો બધા આગેવાનોએ બેસી અને ચર્ચા કરી કે ભાઈ આપણે નેશનલ લેવલનું જો સંગઠન બનાવવું હોય તો એના વસ્તી ગણતરી અને આગેવાનો અને યુવાનોને કામ સોંપવાનું કે ફોર્મ ભરવાના એના માટે નક્કી કર્યું છે। તો સૌ યુવાનો સહકાર આપે અને એ પિનકોડ પ્રમાણે એક પિનકોડની અંદર 3 યુવાનો આગળ આવે। રાજકોટમાં 8 પિનકોડ છે, તો પિનકોડમાં
એક પિનકોડમાં 3 યુવાનો, એવી રીતે યુવાનો સાથ સહકાર આપે. અને આ ફોર્મ આપણે જે આપ્યા છે એ ફોર્મ હિન્દીમાં ભરવાના છે. હું પ્રજાપતિ ભગવતીબેન પરેશભાઈ ધરોડિયા. આજે પ્રજાપતિની મિટિંગ થઈ, એમાં બધા પ્રજાપતિ માટે ફોર્મ ભરવાના છે. એમાં યુવાનો અને બહેનોને મોટી સંખ્યામાં ભાગ લેવાનો, એ ઉપરાંત કે આપણા પ્રજાપતિને જે લાભ નથી મળતા એ લાભ લેવાનો છે અને નેશનલ લેવલે આપણે કામ કરવાનું છે.